Greetings to SEMS. A very good morning to everyone present here. I, Mitul Rana, would like to start this international webinar on unlocking the basics of numerology, a beginner's guide at 11:15 a.m. Numerology is an ancient mystical practice that explores the hidden meanings behind numbers by reducing names and birth date to single digits. Numerology can offer insights into personality traits, life paths, and potential challenges. Key concepts for beginners include life path number. Calculated from your birth date, it reveals your core purpose and life lessons. Expression number, derived from your full name, it signifies your talent, skills, and how you express yourself to the world. Soul surge number, calculated from the vowels in your name, it reflects your inner desires and motivations. Even a basic understanding of numerology can provide valuable self reflection and offer a unique perspective on life's journey. This is just a brief overview. Numerology is a vast and fascinating subject and with many layers of depth. SEMS Welfare Foundation, a registered non-profit organization, is dedicated to social impact across various sectors. We focus on education, particularly skill development and entrepreneurship. Through our initiative, DigiSuction, we have created training programs in IT, finance, retail, and entrepreneurship, impacting over 6,000 individuals. We are currently upskilling inmates in Haryana jails and collaborating with universities and colleges. We have also partnered with banks to place over 1,500 candidates in job. In just a short time, SEMS has established itself a force for positive change, equipping individuals with skills for employment and promoting women's leadership in various industries. In- Collaborating partner, Destiny of Life, to provide a supportive community for occult experts to share knowledge, collaborate, and grow together to promote ethical, responsible occult practices rooted in comparison, wisdom, and integrity, to offer accessible learning opportunities, workshops, and resources for individuals interested in astrology, tarot, numerology, healing, and other occult sciences, to dispel myths and misconceptions surrounding occult practices by promoting awareness, education, and transparency to foster personal growth, self discovery, and spiritual awakening through practical applications of occult knowledge. So, about the speaker, Daya Shankar Srivastava, numerology and Vastu coach, empowering lives through destiny of life, the journey of self transformation. He is a certified numerology and Vastu coach with a passion of helping individuals achieve harmony, success, and well being through ancient wisdom and modern application. His mission is to guide people in unlocking their potential by understanding the influence of numbers and spatial energy in their lives. Services offered personalized numerology readings, name and signature corrections, birth chart analysis, Vastu consultation for homes and offices, remedies for financial, relationship, and career growth, online in personality coaching. Why to choose him? 10 years of experience in numerology and Vastu practices, practical and actionable remedies for positive results, tailored solutions to align energy and bring prosperity, a trusted guide for transforming life. Get in touch. I would like to take this opportunity to welcome our guest of honor, Daya Shankara Srivastava, with a hearty round of applause. This has given an immense significance for today's session. So you can continue with your presentation now. Thank you so much, Mithun and Lakshmi, for inviting me such a wonderful webinar, and welcome all the audience which are in with now connected and are being connected. Try to connect. So आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले मैं इस 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं आप सभी को कि आपका ये वर्ष, आपका आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियां, सुख, समृद्धि और बहुत सारे अचीवमेंट्स लेके आए। तो मैं शुरू करता हूं आज का ये वेबिनार। जैसा मिथुन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, दयाशंकर श्रीवास्तव, फाउंडर डेस्टिनी ऑफ लाइफ। ये मेरा छोटा सा एक प्रयास है कि इस वेबिनार के माध्यम से मैं आपको आपके हिडन पोटेंशियल के बारे में कुछ इग्नाइट कर सकूं, आपको प्रोत्साहित कर सकूं कि नंबर्स होते क्या हैं और कैसे हम इन चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जीवन में, इंक्लूडिंग में, मैं भी उसमें से एक हूं, कि शायद अपने आप को पहचानना सबसे बड़ा कठिन काम है इस दुनिया में। दूसरों को हम पहचानते रहते हैं, दूसरों के बारे में बोलते रहते हैं, तुम्हारे में ये कैपेबिलिटी है, मेरे में ये है, बट अपने आप अपने हिडन पोटेंशियल को पहचानना इज वेरी टफ, और ये बहुत कठिन काम। जितने भी लोग सक्सेस हैं, शायद उनमें वो वही लोग हैं जिन्होंने अपने पोटेंशियल को पहचाना, अपनी अपनी शक्ति को पहचाना उन्होंने, कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज का ये वेबिनार शायद मेरा प्रयास है, मेरी पूरी टीम का प्रयास है कि आपको मैं इसके बारे में एटलीस्ट इतना तो
बता सकूं या आपको इतना नॉलेज आप लेके जरूर जाएं टेक अवे फ्रॉम दिस वेबिनार कि एक्चुअली आपका डेट ऑफ बर्थ है वो कितना इंपॉर्टेंट हो। नंबर्स पूरी लाइफ हम लोग नंबर्स के पीछे भागते रहते हैं। जब भी हम कोई भी बच्चा, ये नंबर्स हमारा पीछा शुरू से लेके जन्म से लेके और हमारे लास्ट मोमेंट तक पीछा नहीं छोड़ते है ना। वो हमें कहीं ना कहीं ट्रेस करते रहे। जब भी कोई इंसान इस धरती पे जन्म लेता है तो भी एक वो टाइम होता है, एक नंबर होता है, एक समय का नंबर होता है, एक एक वो दिन होगा उसका एक नंबर है, एक डेट है जिस डेट में वो पैदा होता है उसका भी एक नंबर है। तो नंबर्स क्या है कि शुरू से लेके लास्ट तक पीछा। जब हम पैदा हुए तो कोई एक डेट होगी हमारी, जब बड़े हुए स्कूल जाना हुआ तो भी एक डेट होगी कि किस डेट से हमने स्कूलिंग स्टार्ट की, पढ़ना स्टार्ट किया। बड़े हुए कॉलेज गए, स्कूल का रोल नंबर हुआ। बड़े हुए पढ़ लिख के नौकरी लगी तो फिर एक सैलरी का एक नंबर हुआ है, कितने नंबर में सैलरी मिल रही है। तो ये नंबर शुरू से लेके लास्ट तक चलते रहते हैं। हम घूमने जाते हैं, कहीं रुकते हैं तो होटल का एक नंबर है, हमारा एक मोबाइल नंबर है, ठीक है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर है, घर का नंबर है, फ्लैट का नंबर है, दोस्तों में यारों में सबके पास कोई ना कोई एक नंबर है। तो ये नंबर कितने हिडन है और कितने हिडन पोटेंशियल रखते हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे लाइफ के लिए, ये ज्यादा जरूरी है। हम लोग अक्सर इग्नोर करते हैं कि ठीक है आज की डेट क्या है, 5 तारीख है, जो भी है, लेकिन उसको जानना समझना बहुत जरूरी। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इस चीज को और आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मेरे बारे में मिथुन ने आपको बता दिया। मैं शेयर करूँ मिथुन अपने सारे, ऑलरेडी शेयर्ड है स्क्रीन मेरी। यस, जी सर। Sir, yes, sir. स्क्रीन शेयर्ड है। Yes, sir, we can see the screen. ओके ओके, सो आज का ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी चीज जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि हमें पहुंचना कहाँ है, बट जरूरी ये है कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं और किस लेवल से कर रहे हैं। तो आपकी जो स्टार्टिंग जर्नी है वो आपको बहुत दूर तक ले जाती है। सही टाइम पे सही चीज की शुरुआत करना, सही चीज की पढ़ाई करना, सही चीज की नौकरी करना, सही चीज के लिए बिजनेस करना, तो ये सारी चीजें जरूरी होती। तो जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ये चीज जरूर अट्रैक्ट कर रही होगी कि ये न्यूमरोलॉजी एक्चुअली होता क्या है। शायद वो आज इसी वजह से इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं। तो उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा कि आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं और आपकी ये जिज्ञासा 100% आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी। तो आज का ये वेबिनार हमारा अनलॉकिंग द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी है, बहुत बिगिनर्स गाइड के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये न्यूमरोलॉजी होता क्या है हमारे लाइफ में, क्यों हम इसको पढ़ें या क्या हो। बहुत सारी न्यूमरोलॉजीज हैं, तो जिसमें जो अगर हम टाइप्स की बात करें तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी आती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, यहाँ पे कीरो न्यूमरोलॉजी आती है, शेल्डियन होती है एंड पाइथागोरियन होती है। तो करीब 5 टाइप्स की न्यूमरोलॉजीज हैं यहाँ। जो मैंने स्टडी की है या जिसपे मैं वर्क करता हूँ या करता आया हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो बेसिकली चाइनीज बेस्ड न्यूमरोलॉजी पे है, जो हम लूसो ग्रिड पे डिपेंड करती है। आगे हम अभी आपको बताएंगे फुल वेबिनार कि कैसे हम लूसो ग्रिड को भी बनाएंगे, कैसे बर्थ चार्ट को प्रिपेयर करेंगे, ड्राइवर कंडक्टर नंबर कैसे फाइंड करते हैं और इनका कॉम्बिनेशन है या कंपेटिबिलिटी है वो कैसे वर्क करता है। इन सारे नंबर्स के ट्रेड्स क्या है कि किसी का अगर नंबर 1 है, 1 तारीख को पैदा हुआ है, 2 को पैदा हुआ है, 3 को पैदा हुआ है या 5 तारीख को उसका जन्म हुआ है, तो इससे रिलेशन क्या है। और कुछ न्यूमरोलॉजी की बहुत अच्छी ट्रिक्स आपको बताऊंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये न्यूमरोलॉजीज हैं, है ना, टाइप्स के। तो आगे हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि लोशो ग्रिड क्या है। लोशो ग्रिड क्या है, एक चाइनीज मैथमेटिशियन है और ये लोशो ग्रिड का जो नाम आया है वहीं से आया है। एक चाइना में लुओ रिवर है, लियोंग में। तो शायद उनको ऐसा कहानी है कि उनको जब भी वो थोड़े से आध्यात्मिक डिवाइन टाइप के थे, जब वो ध्यान लगाते थे तो उनको कुछ ना कुछ दिखाई देता था, ऐसा कुछ नंबर्स, कुछ एक टाइप का स्ट्रक्चर जो हम लोशो ग्रिड को फॉर्म करते हैं इस टाइप का। तो उन्होंने कुछ उसको डिजाइन किया और उनमें कुछ नंबर्स को ऐसे प्रिडिक्शन करके बैठाया कि जो हमारे सारे नंबर्स हैं उस ग्रिड में, वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ पाथ में पूरे लाइफ को, एंटायर लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करें। आज जो हम बात करेंगे, पहले तो हम लोग कैसे लोसो ग्रिड को बनाएंगे वो देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक होगा कि व्हाट इज लोसो ग्रिड, ये इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिपेयर बर्थ चार्ट, इस पे बात करेंगे। ड्राइवर कंडक्टर नंबर्स क्या होते हैं, इस पे बात करने वाले हैं। और इनकी कैपेबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी मतलब कि कैसे एक दूसरे से कंपेटिबल हैं ये नंबर्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लाइक ह्यूमन बीइंग सबकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मेरा दोस्त ऐसा बिहेव करता है तो क्यों करता है, मेरे पेरेंट्स मेरे से ऐसे बात करते हैं, मेरा टीचर इतना गुस्सा क्यों करता है, ठीक है, मेरे फ्रेंड जितने हैं या सोशल मीडिया में जितने फ्रेंड हैं उनका ओपिनियन हमारे लिए ऐसा क्यों होता है या उसका नेचर ऐसा क्यों है। वो सारी चीज आज हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है ना। और कुछ ट्रिक्स हैं फाइनल सेशन में। और फाइनली हम आपसे कुछ कुछ बात जरूर करेंगे, आपकी कुछ क्वेरी होगी तो हमारी टीम क्वेश्चंस लेंगे, उसके हम आपको जवाब देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोसो ग्रिड
क्या मैं आपको अपना पेज दूसरा सबमिट करता हूँ। चलिए, तो अब हम लोग सीखना शुरू करते हैं कि क्या होता है लोसो ग्रिड। आपने देखा होगा कि ये जो आपको पेज विजुअल है मिथुन, आई थिंक दिस पेज इज विजुअल। यस सर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लोसो ग्रिड की बात करते हैं। जस्ट आप यहाँ पे देखिए, बॉक्स हमने बनाया हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है यहाँ, इसको हम लोग लोसो ग्रिड बोलते हैं। इनमें कुछ नंबर्स हम लोग प्लेस करते हैं। बनाएंगे कैसे? कुछ भी नहीं है इसमें, आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है इस टाइप से, और इसको 9 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 9 बॉक्सेस, ऐसा इसको डिवाइड करना है कि 9 बॉक्सेस बन जाए। तो 4 हॉरिजेंटल लाइन और 4 वर्टिकल लाइन अपन। इसमें नंबर्स की जो प्लेसमेंट है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसको हम लोग चेंज नहीं करते। लाइक आप यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, तो 4 हम लेफ्ट का अगर फर्स्ट कॉलम ले तो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट सेल में हम 4 प्लेस करेंगे, नीचे वाले में 3 प्लेस करते हैं, और यहाँ पे 8 प्लेस करेंगे। इसके बाद दूसरे कॉलम के फर्स्ट सेल में 9, देन 5 एंड 1। नेक्स्ट है थर्ड कॉलम का फर्स्ट सेल जाएगा 2, देन 7 नंबर को प्लेस करेंगे एंड 6 नंबर को प्लेस करेंगे। ये ऑलरेडी फिक्स है। कहां से रेफरेंस लिया हमने? इस लोसो ग्रिड से हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया। ये नंबर्स हमारे फिक्स होते हैं। करना क्या है इसको, जब भी हम किसी पर्सन का जो भी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आती है, या कोई डेट बर्थ लेंगे, और उसको अगर हम इस लोसो ग्रिड में प्लेस करेंगे उनके नंबर्स को, तो हमें हमेशा इस लोसो ग्रिड का रेफरेंस लेना है। इन प्लेसमेंट को हम चेंज नहीं करेंगे। कोई नंबर एक से ज्यादा बार आएगा, देन वी पुट पर्टिकुलर सेल जहां पे वो पहले से लिखा हुआ है। वी कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ दीज नंबर, दे आर फिक्स्ड, ऐसा मान के चलना। ओके, तो बर्थ चार्ट हम लोग बनाएंगे सबसे पहले। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक छोटा सा किसी की डेट ऑफ बर्थ रैंडमली हम लोग लेते हैं। सपोज आज की डेट है 12 जनवरी, ठीक है। 12 जनवरी मीन्स 12 तारीख, फर्स्ट मंथ, और ईयर थोड़ा हम लोग पीछे चले जाते, 2015 ले ले, ठीक है। ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, उनका नेम कुछ भी हो सकती है, नेम नहीं पता, बट बर्थ हमें पता है, इनका डेट ऑफ बर्थ ही है, ठीक। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितनी भी ऑडियंस है ना, वो आप लोग पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे एक नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो सीखते बहुत हैं। तो थोड़ा आपको लिखते हुए चलना है, या जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते चलिए, लिखते भी चलिए, सो दैट आपको समझ में आए। तो सभी लोग प्रिपेयर्ड हैं? एक बार चैट बॉक्स में यस लिखें अगर आप लोग प्रिपेयर्ड हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, या अभी तक हमने जो समझाया वो समझ में आया हुआ? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो आप लोग इसी बात से पता चलता है कि आपने वेबिनार ज्वाइन किया, तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं, और आपका जो पैशन है वो आगे ही होने वाला है, ऐसी मेरी उम्मीद। चलिए, तो एक डेट ऑफ बर्थ हमने रैंडमली लिया हुआ है, 12 जनवरी 2015। अगर हमें इसका बर्थ चार्ट का एनालिसिस करना हो, या हम ड्राइवर कंडक्टर निकालेंगे, तो वो सारी चीजें हम कैसे निकालें? तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, अभी तो हम लोसो ग्रिड बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। आप लोग क्या करेंगे? अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। और एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे, स्पेशली न्यूमरोलॉजी में, तो वो डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल मीन्स कि कभी कभी होता है पेरेंट्स किसी वजह से, मे बी पढ़ाई किसी वजह से डिले हुई, नेम बच्चों का डिले लिखवाते हैं, तो एक गैप मेंटेन करने के लिए, एज मेंटेन करने के लिए स्पेशली ईयर चेंज कर दे, कभी 1 साल पहले, कभी 1 साल बाद, ऐसा होता है ना। अभी के बच्चों में तो नहीं हो रहा, लेकिन जो हमारे एज वाले होंगे, 90, 98 वाले, 90, 80, 85 वाले, उनका डेट ऑफ बर्थ चेंज रहता है। क्योंकि जो मेरे क्लाइंट आते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनकी डेट बर्थ एनालिसिस करने के बाद उनको बताते हैं, फिर वो अजीब सा चेहरा बनाएंगे, सर आपने जो भी बताया सब गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मुझे पूछना पड़ता है पहले कि आप अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएंगे, तभी हम आपको ओरिजिनल चीज बता पाएंगे, आपके बारे में सही प्रिडिक्शन हो पाए। सो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। बी श्योर कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज करेक्ट। मार्कशीट में लिखी कुछ और होती है, होती कुछ और है। आई एम श्योर कि अभी की जितनी भी जनरेशन हैं, उन सब का डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, और लोसो ग्रिड में नंबर्स को प्लेस करें। करना क्या है? हमें कुछ भी नहीं करना है। आप एक बॉक्स बनाइए, सभी लोग ड्रॉ करेंगे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए आपने। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद इस एक बॉक्स को हम बनाएंगे। पहले बॉक्स में 9 सेल्स ड्रॉ करेंगे, ऐसे 20 से 2 बार, और 2 लाइन इसमें ऐसे कर लेंगे। सर 2 लाइन आप ऐसे ड्रॉ करें। ओके, चलिए, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी वीक है। अभी क्या करना है आपको? अपने डेट ऑफ बर्थ से नंबर को पिक करना। चाहे तो आप यहाँ पे सारे नंबर्स लिख लीजिए। कौन कौन से नंबर हैं आपके पास? 1 है, 2 है, 0 नहीं लिखेंगे। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 तक के नंबर्स को हम करते हैं, 0 को नहीं लिख। 2 है, फिर 0 आ रहा छोड़ देंगे, 1 है एंड 5 है, ठीक है। तो इतने नंबर्स इस डेट ऑफ बर्थ में थे, ठीक है। 2000 वालों के साथ यही है ना कि नंबर ऑफ 2 बहुत आते हैं, फिर भी चलिए। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है? 1 है। 1 को हम पिक करेंगे, लाएंगे कहाँ पे? इसकी प्लेसमेंट पे। रेफरेंस क्या लेंगे?
रेफरेंस लेंगे हम इस लोशो ग्रिड का। नंबर 1 कहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, नंबर 1 जहां लिखा हुआ, ओके, ये है 1 यहाँ पे है, तो हम भी अपने लोशो ग्रिड जो बनाएंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ का, तो उस 1 को यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1, ओके। फिर क्या है 2, आप लोशो ग्रिड में देखिए 2 कहाँ पे है, सबसे यहाँ पे टॉप पे, थर्ड कॉलम का फर्स्ट सेल, तो हम 2 को भी यहाँ पे प्लेस, ऐसे प्लेस कर दीजिए। फिर 1 आ रहा है तो कहाँ ले जाएंगे, जहां पे 1 का पहले से है वहीं पे ही लिखना है और कहीं नहीं ले जाना है। चाहे तो थोड़ा इसको डिस्टेंस पे लिख लीजिए या आप यहाँ पे कॉमा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉमा लिख, 1 आ गया, फिर से 2 आया तो 2 वाले प्लेस को फिर से ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर 2 आ गया, फिर से 2 को लिखेंगे, कहीं भी लिख सकते हैं, लेफ्ट राइट कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। 1 आया, अगेन 1 लिखेंगे यहाँ पे, और लास्ट नंबर कौन सा है 5, 5 कहाँ पे लिखा हुआ है, 5 मिड में रहता है, सबसे मिड वाली शेल, तो 5 को हम यहाँ प्लेस, ठीक है। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का लोशो ग्रिड तैयार हो गया, राइट। सभी ने बना लिया अपना, कमेंट में लिखेंगे यस और नो, सभी लोगों ने बना लिया है, एक बार जरूर लिखें। अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ का लोशो ग्रिड तैयार कर लिया तो आपने पहला स्टेप ले लिया बर्थ चार्ट एनालिसिस का, वेरी गुड, सभी ने बना लिया। चलिए एक हम नंबर और लेते हैं, ऑडियंस में से कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ देना चाहेगा कमेंट में, तो उसका लोशो ग्रिड बनाते हैं हम लोग और उसी के बारे में आगे बात करेंगे। एनीवन, कोई नहीं। चलिए सबसे पहला नंबर, ओहो कोई एक लेते हैं, अच्छा प्रथम राणा जी 9/11/2001। चलिए हम करेंगे, सबकी बर्थ एनालिसिस करेंगे और किसी एक की बर्थ चार्ट फाइनली हम लेके उसकी पूरी एनालिसिस भी बताएंगे आपको। चलिए ढेर सारे हैं, 26/9/2005, ये है मोहम्मद जश्न शेख जी। चलिए मोहम्मद शेख की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और हम इनका लोशो ग्रिड तैयार करते हैं 26/9/2005। चलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ 26/9/2005, यस। अब आपको लोशो ग्रिड बनाना है तो सेम है, सब लोग जिनका भी मिस हो गया एक बार फिर से चेक कर लेंगे, देख लीजिए। अगेन हम बना रहे हैं, आप कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहन का डेट बर्थ ले लीजिए और एक दूसरा लोशो ग्रिड तैयार करते हैं हम लोग, ठीक है। उसी तरीके से बॉक्सेस बनाने हैं और जो आपके पास नंबर है नंबर्स को वहीं पे प्लेस करने हैं। रेफरेंस कितना लेंगे, रेफरेंस लेंगे हम लोशो ग्रिड का, तो सबसे पहला 2 नंबर है डेट ऑफ बर्थ का, इस नंबर को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ओके। फिर आया 6 सबसे नीचे होता है यहाँ पे, तो थर्ड कॉलम का सबसे लास्ट 6 आ गया। 9 है तो 9, 0 को प्लेसमेंट नहीं है कोई भी, ठीक है, 9 हम लोग यहाँ लिखेंगे। अगेन 2 आया है, यहाँ लिखेंगे, सारे 0 छोड़ देंगे और लिखेंगे यहाँ पे 5, तो ये हमारा लोशो ग्रिड बन गए। तो होप आपको लोशो ग्रिड में किसी भी डेट ऑफ बर्थ के जितने भी नंबर्स हैं उनको प्रॉपर प्लेस में प्लेस करना आ गया होगा, यस। चलिए अब कहानी और आगे बढ़ती है, हमने लोशो ग्रिड तो बना लिया, तो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि जो हमारा बर्थ चार्ट बनाएंगे किसी का, तो उसमें उसका ड्राइवर नंबर क्या होता है, ठीक है, ड्राइवर नंबर, ठीक। और एक नंबर और हम लोग निकालते हैं कंडक्टर, इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो ये होता है मूलांक। ड्राइवर नंबर को क्या बोलते हैं, मूलांक। और जो हमारा कंडक्टर नंबर होता है वो होता है भाग्यांक, भाग्यांक, ठीक है, इसको भा पढ़िएगा, भाग्यांक, राइट। तो ड्राइवर नंबर कैसे निकालेंगे और कंडक्टर नंबर कैसे निकालें, तो ये 2 चीज हम लोग सीखते हैं पहले, है ना। चलिए ड्राइवर नंबर की बात करते हैं या भाग्यांक या मूलांक की बात करते हैं। तो मूलांक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ की जो डेट है ना, आप लोग जानते हैं ना डेट ऑफ बर्थ को हम लोग किस फॉर्मेट लिखते हैं, DD MM एंड YYYY, है ना। ये हमारा वो डेट हो गया जिस डेट में कोई भी इंसान जन्म लेता है, उस महीने को लिखा जाता है और उस ईयर को लिख। तो जो मूलांक बनेगा हमारा, मूलांक क्या करेंगे, जो भी डेट है उस डेट का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। सम करने पे भी अगर 2 डिजिट में आए तो सिंगल डिजिट में हमें लिखना होता है, ठीक है, एक अंक में बना लेंगे। जैसे 26 तारीख है इनकी, तो क्या करेंगे 2 + 6, इसको सिंगल डिजिट में ले आना है, कितना आ जाएगा ये 8, तो 8 हमारा क्या हो गया, ड्राइवर नंबर या मूलांक, ड्राइवर नंबर या मूलांक, राइट। तो इसको हम लोग लिखेंगे 8। समझ में आया सभी को। ड्राइवर नंबर कैसे निकालते हैं, जो भी डेट है उस डेट का सम कर। सपोज करते हैं कि किसी का जन्म मान लीजिए यहाँ पे 1 तारीख को हुआ है, 1/8/1980 ऐसे, तो अब ड्राइवर नंबर इनका कितना निकल के आएगा, सिर्फ 1 है, सिंगल डिजिट में है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर है, तो क्या करेंगे, अगर हमें सिर्फ यहाँ पे ड्राइवर पहले फाइंड करना होगा तो हम इन दोनों नंबर्स को सिंगल डिजिट में लाएंगे। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से मूलांक हमारा 4 बन। आई होप सभी को मूलांक निकालना आ गया होगा। जो भी हमारा डेट है, जिस दिन हम पैदा हुए हैं उस दिन कौन सी तारीख थी, उसका हमें सिंगल डिजिट में करना। अगर वो सिंगल डिजिट में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दोनों डिजिट को आपस में ऐड कर लीजिए, सिंगल डिजिट में लाना जरूरी। तो ड्राइवर नंबर हो गया हमारे पास 8, ठीक। अब आते हैं
भाग्यांक निकालने, ठीक है, या कंडक्टर नंबर। तो भाग्यांक कैसे निकालेंगे? भाग्यांक निकालने के लिए जो हमारी डेट है, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, इन सब का टोटल, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ, जितनी भी डिजिट हैं, जीरो को छोड़ दीजिए, ऐड करेंगे तो वही आएगा। तो आप उन सब को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर ले, ठीक है। तो ऊपर कितना था, 26/9/2005 था। तो अभी हमें अगर यहाँ पे भाग्यांक निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2+6+9+2+5, सारे जीरोस को छोड़ ये पूरा सम करेंगे, ठीक है। सम करके कितना आएगा, कमेंट सेक्शन बताइए कितना आएगा फटाफट। 6 और 2 8 हो गया, 10 5 15, ठीक है। टोटल कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 को फिर से हम सिंगल डिजिट में करेंगे, 1+5, तो कितना आ जाएगा, ये 6। इसका मतलब, अच्छा 9 को भी हम नंबर जोड़ेंगे ना तो वही आएगा, आप चेक कर लीजिए, मैंने 9 को Sir, स्किप it's किया है। 24, not 15. 24, Yes. ओके, 8 and 2 10, So the total should be कैसे है 24. 24, Yes, 6 plus 2, 8, 8 plus 9, 17 plus 2, 19, 19 plus 5 is 24. 24, ओके ओके, लेट मी चेक, 24 सर। 24, ओके, 24 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6. आंसर मेरा कितना था पहले? हाँ, आपका भी 6 था, बट आपने 6, कैलकुलेशन 15 किया था। हाँ, मैंने आपको बाद में बताया कि 9 को हम ड्रॉप कर सकते हैं, ओके। फास्ट करने के लिए कैलकुलेटर नहीं उठाना है तो हम 9 की डिजिट को छोड़ सकते हैं। अगर आप 9 को ऐड करेंगे तब भी सम उतना ही आएगा, फाइनल आंसर यही आएगा, ओके। ठीक है। तो आप हमारे वेबिनार में हैं तो थोड़ा सा ट्रिक सीख के जाइए, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ में किसी में बहुत सारे 9 आते हैं, तो आप ऐड करोगे, सम विल बी सेम, 6 आएगा लास्ट में, ठीक है। आप कोई भी रेंडमली ले लीजिए, मैं 9 को नहीं जो ऐड करूंगा, आप 9 को ऐड करके देखिए, लास्ट में यही नंबर आएगा। रीजन नहीं पूछेगा कोई क्यों ऐसा होता है सर? सर फिर अगर 6 आना ही है तो फिर हमको ऐड क्यों करना है? हाँ, इसलिए हमने 9 को स्किप किया ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, क्योंकि हम बर्थ चार्ट एनालिसिस करेंगे, बहुत सारे 9 आ रहे हैं बीच, बट नो प्रॉब्लम, ये आप थोड़ा सा जो प्रैक्टिस कर लोगे तो ठीक रहेगा। आप सारी डिजिट को ऐड करिए, ठीक है, कम टू 24, एंड इसको हम सिंगल डिजिट में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 आएगा, राइट। ओके, तो यहां से हमें दो चीजें पता चल गई, एक तो हमारा भाग्यांक और दूसरा मूला। अब इनको प्लेस कहाँ करेंगे, यहाँ पे हम लेके आए थे, ड्राइवर आया था हमारा, कितना आया था, 8 आया था, ओके, यहाँ पे हमने ड्राइवर लिख लिया 8, और जो हमारा भाग्यांक आया वो आया 6। तो 8 कहाँ लिखेंगे, फिर से इस भाग्यांक और मूलांक को, ये आपके एक तरीके से क्या है, बर्थ चार्ट में हमने लोसो ग्रिड में ये नंबर प्लेस किया, अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं था। नाउ हमें मूलांक को भी यहाँ पे प्लेस करना है। 8 आया है, 8 को लोसो ग्रिड में देखें कहाँ पे लिखा जाता है, फर्स्ट कॉलम के सबसे लास्ट सेल में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8, और 6 आया, 6 दोबारा आ रहा है तो हमने यहाँ पे फिर से 6, ठीक है। क्या करेंगे, पहले तो जितने भी नंबर्स हमारे डेट ऑफ बर्थ में हैं उन सबको बारी बारी से लोसो ग्रिड में प्लेस करेंगे। इसके बाद मूलांक निकालेंगे। मूलांक निकालने के लिए जो भी डेट है बर्थ की उसको हम सिंगल डिजिट में करके प्लेस कर देंगे, और भाग्यांक निकालने के लिए जितनी भी डेट ऑफ बर्थ में है, मंथ, ईयर, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, और इसको भी यहाँ पे प्लेस। अब ये जाके आपका बन गया न्यूमरोस्कोप, किसी भी पर्सन का ये न्यूमरोस्कोप बन गया, या इसको हम बोलते हैं बर्थ चार्ट, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी को, बर्थ चार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, एक लॉटरी है, ये आपके जो ड्राइवर कंडक्टर है एक तरीके से लॉटरी है ना। एक नंबर हम लोग और निकालते हैं, कुआ नंबर, ठीक है। तो कुआ नंबर क्या होता है कि जो भी आपका ईयर है, सिर्फ बर्थ ईयर को लेंगे, उसको ऐड करेंगे, ठीक है। कुआ नंबर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। इसको वैसे तो पाकुआ बोलते हैं, इसका करेक्ट नेम है पाकुआ, है ना, या सिर्फ KU, कुआ नंबर, ठीक। कुआ नंबर कैसे फाइंड करेंगे, जो भी ईयर है हमारा, कितना था, 2005, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे, 2 + 7 कितना आया, 12, सॉरी 2 + 5 आंसर आया 7, ठीक है। अब यही डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, कुआ नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ मेल की है, ठीक है, मेल की है तो इसको हम 11 से माइनस करके लिखें, कितना आएगा, 4, ठीक है। और अगर फीमेल की है तो हम इसमें 4 ऐड कर दें, ठीक है। 7 + 4 कितना आया, 11, और इसको सिंगल डिजिट में करेंगे तो 2। किसी फीमेल की अगर बर्थ ऑफ ईयर 2005 होगा, उसका कुआ नंबर 2 आएगा, और इफ दैट कैंडिडेट इज मेल देन हिज कुआ नंबर इज 4। 11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर फीमेल है तो 4 ऐड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है कुआ नंबर का। कुआ नंबर्स एक तरीके से कह सकते हैं जो आता है, ये आपकी बर्थ चार्ट में एक तरीके से आपकी लॉटरी है एक्चुअली। सर जो प्लीज भी एक बार लोग, वापस एक्सप्लेन करिए। यस, सर एक कुआ बार नंबर, फिर से एक्सप्लेन करिएगा। श्योर श्योर। कुआ नंबर फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ सम ऑफ ईयर करना है। क्या करना है, सम ऑफ ईयर, जो भी नंबर है उसको सम करना है। सपोज कोई व्यक्ति पैदा होता है 1990 में, ठीक है, तो इसके सारे डिजिट का सम कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा सम। अब देखना यह है कि
आपको जब भी बर्थ चार्ट बनाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा वो डेट ऑफ बर्थ मेल की है या फीमेल की है, ठीक है। कंफर्म। मेल के केस में आपको जो भी नंबर कुआ नंबर आया है उसको 11 से माइनस करके लिखिए, 10 आएगा फिर इसको सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट करिए। और अगर फीमेल है तो उसमें 4 ऐड कर देंगे। देखिए दोनों में डिफरेंस आ गया ना, फीमेल होती तो 5 कुआ नंबर आता और अगर वो मेल है तो 1 आया। नाउ क्लियर? यस सर। ओके, तो ये कुआ नंबर क्या करता है कि अब इस कुआ नंबर को हम लोग क्या करेंगे, बर्थ चार्ट में फिर से फिल करेंगे। तो 2005 का कुआ नंबर कितना आया था, हम लोगों ने निकाला था 2, नो 4, मेल के केस में 4 है ना। तो जो डेट ऑफ बर्थ हम लोग लिख रहे हैं वो मेल है, तो आप जब डेट ऑफ बर्थ लिख लिए तो यहाँ पे एम लिख लीजिए, फीमेल के लिए एफ लिख लिया करिए, ठीक है। तो अब आया यहाँ पे 4, तो 4 को हम कहाँ प्लेस करेंगे, अगेन हम लूसो ग्रिड का रेफरेंस लेंगे, 4 इज हियर, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख। क्या बात है, डेट ऑफ बर्थ किसकी मैंने ली थी मुझे भूल गया, बट जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। और ये जो 4 आया है ये आपके लिए लॉटरी है आपके बर्थ ऑफ चार्ट, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ है, मैं जरूर इनकी एनालिसिस आपको लास्ट में बताऊंगा, 26/9/2005 की। आई होप आपको 3 चीजें समझ में आ गई। क्या क्या समझ में आई मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। लूसो ग्रिड हम लोग ने बनाना सीखा, यस और नो, कंफर्म है। इसके बाद कैसे बर्थ चार्ट प्रिपेयर करते हैं वो बताया मैंने। ड्राइवर कंडक्टर नंबर आपको बता दिया कैसे फाइंड करते हैं एग्जैक्टली। इसके बाद हम लोग आते हैं कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर में, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कुछ ट्रिक्स बताएं। आगे बढ़े हम लोग, यस। यस सर। अभी तक कोई डाउट हो तो एक बार हम यस लोग पूछ सर। सकते हैं। तो लूसो ग्रिड आपने बना लिया अपने अपने बर्थ चार्ट का, आप अपने ड्राइवर नंबर निकाल लीजिए, कंडक्टर नंबर निकाल लीजिए, कुआ नंबर निकाल। ओके चलिए मूव अहेड करते हैं। 2 चीजें हमने आपको बताई नई में, एक तो आपको बताया हमने ड्राइवर नंबर और कंडक्टर। तो 2 हमारे पास नंबर आए थे, फॉर एग्जाम्पल निकाला था हमने 6 एंड 4। ओके, जो आपका 6 नंबर है मीन्स जो आपका मूलांक होता है ना, वो आपकी पर्सनालिटी को क्या बताएगा, आपकी पर्सनालिटी। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या तो वहां पे आपने देखा होगा ना, लग्न चार्ट बनाया जाता है, कुंडली बनाई जाती है जिसमें लग्न चार्ट एक बनता है। तो जो फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है, जो ग्रह बैठा होता है, वो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यहाँ पे काम ड्राइवर नंबर का सेम है। जिस ड्राइवर, जो भी आपका ड्राइवर नंबर है, वो उस नंबर की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो उसकी ट्रेड्स हैं, जो उसके सिम्टम्स हैं, वो सारे आपके आपके बॉडी में, आपके नेचर में रिफ्लेक्ट। आपका टीचर बहुत गुस्सा करता है, आपकी मम्मी बहुत उदार हैं, आपके पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, आपका बॉस बहुत सौम्य स्वभाव का है, बहुत अच्छे से बात करता है। तो ये सारी चीजें ड्राइवर नंबर से आती हैं, और साथ में उसको प्रॉपर्टीज उसके कंडक्टर नंबर से भी मिलती है। तो ये दोनों आपके ड्राइवर कंडक्टर हम क्यों बोल रहे हैं, यही दोनों ऐसे हैं जो आपके जीवन की गाड़ी को खींच के ले जाएंगे, ठीक है। सपोज करिए आप एक बैलगाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी को कौन खींचता है, या रथ में बैठे हैं, उस रथ में 2 घोड़े लगे हुए, ठीक है, 2 घोड़ों से वो रथ चल रहा है, और उस रथ को खींचने वाले दोनों घोड़े आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो वो क्या करेंगे, आपके रथ को बहुत स्मूथली खींच के ले जाएंगे, पूरी जर्नी आपकी बहुत अच्छे से, कहीं जर्क नहीं लगेगा, खींच के ले जाएंगे। लेकिन अगर कहीं ये दोनों, जो हमारे दोनों घोड़े लगे हुए हैं उस रथ में, ये आपस में दुश्मनी कर लें या इनकी आपस में बनती ना हो, तो क्या करेंगे, बहुत हिचकोले मारेंगे। एक कहेगा मैं बाएं बाएं जाऊंगा, दूसरा कहेगा मैं राइट जाऊंगा, तीसरा कहेगा मैं लेफ्ट जाऊंगा, एक तेज स्पीड से चढ़ेगा, दूसरा कहेगा मैं स्लो चल रहा हूं। तो आपकी जो पूरी लाइफ की जर्नी है वो बहुत जिगजैग रहेगी, अप्स डाउन्स बहुत ज्यादा रहे। तो ऐसे बहुत सारे मित्र हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं हूं उसमें, मैं भी हूं, बहुत सारे जिनके ये नंबर्स आपस में फ्रेंड नंबर नहीं है, ठीक है। जो हमारा कोर्सेज होता है, जो फाउंडेशन कोर्स है, उसमें हम लोग ये बताते हैं कि ये दोनों आपस में फ्रेंड होने बहुत जरूरी है। तो एक लंबी स्टोरी है कि नंबर आपस में, कौन से नंबर फ्रेंड हैं, कौन से अनफ्रेंड नंबर हैं, कौन से नंबर न्यूट्रल होते हैं, ये सारी चीजें कोर्सेज में हम लोग पढ़ते हैं। बट आपकी फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर ये 2 नंबर आपस में जेल हैं, आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आपकी लाइफ बड़े आराम से भी, आप देखते होंगे अपने आस पास पड़ोस में, मित्रों में, दोस्तों में, ठीक है, आपके घर में ही बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा होता है, बड़े प्यार से बात करेंगे, सब कुछ रहता है, ठीक है, उनकी नौकरी भी अच्छी चल रही होती है, जॉब भी, जिस प्रोफेशन में होते हैं वो प्रोफेशन बड़ा अच्छा चल रहा होता है, जस्ट बिकॉज आपकी जो उनके रथ के दोनों घोड़े हैं वो आपस में बहुत अच्छे से तालमेल के साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छा तालमेल है दोनों में। दोनों, एक कहेगा कि मैं थक गया हूं तो दूसरा अपनी स्पीड थोड़ा कम कर लेगा, सो दैट कि आपका रथ बराबर चलता रहे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। और इस एक ऐसी साइंस है, ये नंबर का ऐसी विद्या है जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं, चाहे अपनी लाइफ हो, बच्चे की हो, वाइफ की हो, हस्बैंड की हो, मित्रों की, दोस्तों की, यारों की, किसी की भी हो, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो उसके ड्राइवर कंडक्टर हैं, जो उसके 2 ये नंबर हैं उसके बर्थ चार्ट में, ये कितना इंपॉर्टेंस रखते। तो ड्राइवर कंडक्टर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 9 कितने नंबर हैं टोटल, आगे हम उसी पे बात करने वाले हैं, ठीक है।
तो 1 से लेके 9 है। 1 से लेके कितने हैं? 9 है। तो पहले तो मैं आपको इन नंबर्स की आपको बताता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो ये पहले हम इसके कॉम्पेबिलिटी को देखते हैं, देन विल कम टू द कैरेक्टरिस्टिक। तो जो हमारा पहला नंबर है ना, दिस इज नंबर 1। मान लीजिए किसी का ड्राइवर 1 है, मतलब वो मूलांक उसका कितना हो गया? 1। ये क्या हो गया उसका? मूलांक। ठीक, अगर 1 है तो मीन्स 1 रिप्रेजेंट करता है जितने भी हमारे, देखिए 1 से 9 का मतलब क्या हुआ कि हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स आर देयर। तो हर एक प्लैनेट का यहाँ पे एक नंबर है। जो फर्स्ट नंबर है दैट इज सन। पहला नंबर किसका है? सन। सन क्या है? सूर्य बोलते हैं हम लोग, है ना। किंग ऑफ ऑल प्लैनेट, किंग ऑफ ऑल प्लैनेट, राजा है। सूर्य क्या है? राजा है। ठीक, तो आप राजा से समझ सकते हैं बहुत ही रॉयल नेचर क्या होना, ठीक है। सब कुछ पूरी दुनिया में छा जाना चाहता है, सब लोग उसकी बात माने, ऐसा नेचर होता है। एक नंबर, ठीक है। तो अगर इतने सारे प्रॉपर्टीज आएंगी तो थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है, ऐसे लोग ईगोस्टिक भी होते हैं। तो जो जिनका मूलांक 1 है, मूलांक मतलब जो ड्राइवर नंबर है ना, अगर ड्राइवर नंबर 1 है तो कुछ इस टाइप के ट्रेड्स उसमें 100% मिलेंगे, आप आसानी से प्रेडिक्ट कर। दूसरा नंबर जो आता है वो होता है मून का, है ना। ग्रहों में हम इसको चंद्रमा बोलते हैं, चंद्रमा का नंबर, ठीक है। और क्वीन भी बोलते हैं ना, रानी, ठीक है। तो 2 नंबर है अगर, तो वो बहुत सौम्य होगा। बहुत ऐसे लोग बहुत सौम्य होते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। बहुत ग्रेसफुल होते हैं, बाय अपेयरिंग बहुत ग्रेसफुल होते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। और इनका नेचर बहुत शांत रहेगा, हल्ला गुल्ला पसंद नहीं है बिल्कुल भी। इंट्यूशन बड़ी अच्छी होती है, मन का कारक होता है ना। इनके इनके माइंड में जो बहुत सारी चीजें सोचेंगे सही निकलती हैं चीजें, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करें, जो हमारे लूसो ग्रिड में तीसरा नंबर है, दैट रिप्रेजेंट जुपिटर, है ना, बृहस्पति, या हम बोलते हैं गुरु। और ये किसके गुरु हैं? सभी देवताओं के ना, देवताओं के गुरु हैं, ठीक। इसका मतलब 3 नंबर वाले जो होंगे वो हमेशा ज्ञान देंगे। अगर किसी की बर्थ चार्ट में 3 भी है तो वो भी क्या करेगा? आपको ज्ञान देगा, ठीक है। तो 3 नंबर गुरु का होता है, सभी देवताओं के गुरु हैं, तो इनका ट्रेड भी उसी तरीके से होगा, ठीक। नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं है पसंद, ठीक। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर क्या होता है? राहु, ठीक है। राहु को रिप्रेजेंट करते हैं 4 नंबर। और आपको पता होगा कि शायद छाया ग्रह इनको बोला जाता है, ठीक है, छाया ग्रह। तो इनके पास सिर्फ सिर होता है, राहु का सिर्फ सिर है। और इनके दूसरे भाई हैं केतु, बात करेंगे आगे हम लोग किस नंबर पे आते हैं। तो राहु के पास सिर्फ सिर है, मीन्स धड़ नहीं है। तो ये ऐसे लोग फिजिकल वर्क ना करें तो ज्यादा अच्छा है, उनको उतनी सफलता नहीं मिलती। बहुत रिबेलियस नेचर होता है, हम लोग इनको रॉबिन हुड बोलते हैं, रॉबिन हुड, है ना। अगर हम बहुत लेमैन की भाषा में बात करें तो गुंडा, लेकिन कैसा? जो कहीं से किस चीजों को लेके जरूरतमंद लोगों की मदद करे, ऐसा राहु, ठीक है। जो लोग परेशान हैं तो जिनके पास पैसा हो वहां से लेके दूसरे लोगों को देना, दूसरे लोगों की मदद करना, तो ये ट्रेड्स होता है राहु। 5वां जो ग्रह है मरकरी, 5th नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? मरकरी, बुध का। एक आपको फैक्ट बताऊं कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम बर्थ चार्ट एनालिसिस मैंने देखी है जहां पे 5 नंबर मिसिंग होता है। मेरे भी बर्थ चार्ट में मिसिंग, और उसका खामियाजा मैं भी भोग रहा हूँ। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो 5 नंबर है वो हमारे लोशो ग्रिड में एकदम मिड में आता है ना, मिड में आता है ना, सभी नंबर्स इससे बराबर डिस्टेंस पे हैं। सो ये क्या करेगा? इट प्रोवाइड्स द बैलेंस इन बर्थ चार्ट एज वेल एज योर लाइफ ऑल्सो, ओके। तो ये बैलेंस का नंबर होता है, और पूरे बर्थ चार्ट में आपको 5 बैलेंस करके रख। तो एक ऐसा नंबर है राजकुमार, इसको बोलते हैं प्रिंस, है ना। राजकुमार बड़े आराम से, बहुत थोड़े से लेजी किस्म के होंगे, सब कुछ चाहिए इनको, काम नहीं करना पड़े, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और बहुत अच्छा नंबर होता है 5, ठीक। इसके बाद कौन सा नंबर है? 6 है वीनस का नंबर, जिसको हम लोग शुक्र बोलते। तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो इनका है, ये सब कुछ देने वाले हैं, लग्जरी है, ऐशो आराम है, पैसा है, शोहरत है, सारी चीज इनके पास है। तो बड़ा पोर्टफोलियो है इनका, कैबिनेट, है ना। तो ये शुक्र का नंबर हो गया। 7 नंबर आता है जिसको हम लोग केतु बोलते। अब एक हमने राहु पढ़ा था 4 नंबर, जिसके पास सिर्फ होता है। इनके पास सिर्फ क्या है? सर नहीं है, धड़ है। क्या है? धड़। मीन्स कि ये शरीर का ऊपर का पोर्शन नहीं, सर नहीं है, केवल धड़ है। तो ये जो भी सोचेंगे, कुछ भी करेंगे, ये अपने हार्ट से कर, मतलब अपने अपनी हार्ट में इतनी पावर जनरेट कर लेते हैं, इतना पावर डेवलप कर लेते हैं, जो कुछ सोचेंगे हृदय से सोच। तो थोड़े से क्या हो गए, बहुत सौम्य लोग होते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं ना। कोई भी इनको इमोशनली चीट कर सकता है जल्दी से। लेकिन अगर इनको ऐसा कोई गाइड मिल जाए जो बहुत अच्छा हो, तो ये उतना ही लाइफ में बेटर कर सकते हैं। बहुत अच्छा नंबर होता है 7, ठीक है। इनकी इंट्यूशन पावर जबरदस्त होती है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 है तो वो भी वो प्रोवाइड करेगा। 7 नंबर धोनी रिव्यू सिस्टम सुना है ना, मतलब आपको दैट इज रूल बाय 7। तो ये 7 नंबर की खासियत है। 8 नंबर बहुत लोग घबराते हैं, है ना, सैटर्न का, शनि, ठीक है। अब शनि क्या है? स्लोली स्लोली, सनय सनय, सब कुछ मिलेगा लेकिन धीरे धीरे मिलेगा, मेहनत करने पे मिलेगा। तो ये 8 नंबर
रिप्रेजेंट करता है जो हमारे लोसो ग्रिड में। ठीक, 9 नंबर मंगल का होता है, या हम लोग जिसको बोलते हैं मार्स। ठीक, मंगल यानी ये सेनापति का रोल है इनका। ठीक है, सेनापति। तो एक तो थोड़ा सा एग्रेसिव नंबर है ये 9, गुस्सा बहुत आता है, मंगल है। और मजे की बात है कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं, 2025 में। तो ये हमारा ईयर कितने पे आता है, 9 पे, मीन्स मंगल का चल। तो जितने लोग 9 वाले हैं, जिनका भी ड्राइवर 9 आता है, ठीक है, तो ये दो एनर्जी मिल रही है पहले से। एक एनर्जी आपके पास खुद है जो कुछ भी कर सकती है, दूसरी आप उस एनर्जी से मिलने जा रहे हो उस साल में है जो साल ऑलरेडी इतना एनर्जी भरा हुआ है, तो आपको इसको यूटिलाइज करना है। तो ये थे हमारे 1 से लेके 9 तक। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूं, आप लोग यस बोल दिएगा। पहला नंबर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज रिप्रेजेंट सूर्य, सन को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पूरे 9 प्लैनेट से, इसलिए 1 से लेके 9 तक के नंबर्स को हम लोग बर्थ चार्ट में रखते हैं या लोसो ग्रिड में रखा गया है। पहला नंबर सन का होता है, दूसरा नंबर होता है चंद्रमा का, मून का, थर्ड रिप्रेजेंट्स जुपिटर, फोर्थ रिप्रेजेंट राहु जिसके पास सिर होता है, छाया ग्रह है, 5 रिप्रेजेंट्स मगरी, बुध का ग्रह होता है, 7 वीनस है। वीनस की एक क्वालिटी और होती है कि दे आर गुरु, ये भी एक गुरु हैं, लेकिन ये किसके गुरु हैं, दानवों के गुरु हैं। शुक्राचार्य का नाम सुना है सभी लोगों ने, ये दानवों के गुरु हैं, राक्षसों के। तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये है हमारे देवताओं के गुरु हो गए। ठीक है, और 6 राक्षसों के या दानवों के गुरु हो गए। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में या ड्राइवर कंडक्टर 3 एंड 6 ये आ गया, तो थोड़ा सा अंतर्द्वंद चलता है। 36 का आंकड़ा सुना है आप लोगों ने, 36 का आंकड़ा जिसने भी कहानी बनाई होगी बहुत अच्छे से बनाई होगी। तो 36 का आंकड़ा यही है, ये है देवताओं के गुरु, बहुत सात्विक विचार के, पढ़ाई लिखाई ये सारा पोर्टफोलियो है। ये दानवों के गुरु हैं, खाना पीना मौज मस्ती सब कुछ है, लग्जरी है, ग्लैमर है ना। तो ये आपस में क्या है, ये इनको नहीं पसंद करते, इनको नहीं पसंद करते। लेकिन दुर्भाग्यवश या क्या कहिएगा, हमारा कंट्रोल तो कुछ है नहीं ना, हमारा पैदा होने में कोई कंट्रोल नहीं है, हम किसी भी तारीख को पैदा हो सकते हैं, हमारा बर्थ चार्ट उसी अकॉर्डिंग बन जाता है। ये हमारा एक तरीके से जीपीएस है, बन गया तो बन गया। बट अगर हमें नॉलेज है न्यूमरोलॉजी की, या हम जानते हैं न्यूमरोलॉजी, तो हम इसको इजिली ट्रीट कर सकते हैं, अच्छे से हम इनको समझ के अपने लाइफ में प्रोग्रेस को अचीव कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि 36 का आंकड़ा क्यों बोला जाता है, कि हमारा उसका 36 का आंकड़ा मतलब विचार नहीं मिलते, आपस में आपके विचार नहीं मिलेंगे। 7 नंबर केतु का है, बता दिया मैंने आपको। 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है, 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां तक समझ में आया सभी को, एक बार यस करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, तो Yes, sir. वेरी गुड। तो सभी लोगों ने अपना बर्थ चार्ट बनाया होगा, और बर्थ चार्ट बनाने के बाद हम लोग नंबर प्लेस कर पा रहे हैं, लोसो ग्रिड बना पा रहे हैं। लोसो ग्रिड बनाने के साथ साथ और क्या हो जा रहा है कि वहां पे हम लोग अपने ड्राइवर्स कंडक्टर्स को भी फाइंड कर ले रहे हैं अपने बर्थ चार्ट में। यहां तक की कहानी सही। कहानी और भी है, और क्या होती है कि अभी हमने आपको बताया कि आपके 2 नंबर है ना, एक आपका ड्राइवर और दूसरा कंडक्टर। ठीक है, तो ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर डीसी, टोटल नंबर है 1 से लेके 9 तक। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, दैट इज द कोर ऑफ न्यूमरोलॉजी। अगर किसी ने ये समझ लिया कि हमारा ड्राइवर कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन है, उन कॉम्बिनेशंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी की लाइफ में, या सपोज किसी का ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 1 है, किसी का ड्राइवर 1 कंडक्टर 2, किसी का ड्राइवर 1 कंडक्टर 3, किसी का ड्राइवर 1 कंडक्टर 4, इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो हम लोग अपने फाउंडेशन कोर्स में सीखते हैं। 81 कॉम्बिनेशन जब बनते हैं, तो 81 कॉम्बिनेशन में आपका कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से प्लेनेट आपको रूल कर रहे हैं, आपकी पूरी पर्सनालिटी में ड्राइवर क्या क्या रोल है, कंडक्टर का रोल क्या है, कौन कौन से नंबर आपको सूटेबल हैं, कौन से नंबर सूटेबल नहीं है। कभी होता है ना कि 2018 बहुत खराब गया है, 2008 बहुत खराब गया, 24 बहुत खराब गया, क्यों गया, तो हम लोग ड्राइवर कंडक्टर के बेसिस उसके पर्सनल ईयर्स को भी फाइंड कर, ये सारी चीजें हमें बताती हैं। अगर हमें पता हो पहले से, इसकी नॉलेज हो, तो वी कैन अचीव मेनी थिंग। अगर हमें पता है कि हम जिस सड़क से जा रहे हैं, आगे 2 किलोमीटर बाद वहां रास्ता खराब है, तो क्या हम 90 की स्पीड में गाड़ी लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे। अगर हमें पता है कि आगे आने वाले टाइम में या रास्ता एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जीपीएस में देख लिया, सब चीज चेक कर लिया, तो आप अपनी गाड़ी को स्पीड में भगा सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा संभाल के चल सकते हैं। कौन सा महीना आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा ईयर अच्छा होगा, ये सारी चीजें हम लोग अपने फाउंडेशन कोर्सेज में डिस्कस करते हैं, वो सारी चीजें। अब मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताता हूं, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं कि चीजों को, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिए, नंबर्स कौन कौन से हैं, आगे चलते हैं कुछ ट्रिक्स पे आते, और फिर इनके ट्रिक्स के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जहां पे किसी एक डेट ऑफ बर्थ जिसका लिया था ना, एक बार दोबारा करके एक कंप्लीट चार्ट बना के कुछ हम चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आप नोट्स बना रहे हैं तो ट्रिक्स नंबर 1 लिखिए, ट्रिक नंबर
वन लिख, लोसो ग्रिड देखते हैं और एक बर्थ चार्ट और बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा। इस पेज को थोड़ा सा हम लोग फ्री कर ले। 5 मिनट में सेशन को भी ओवर करना है। 5 मिनट में टाइम दूंगा, अगर कुछ क्वेरी होगी तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग एक बर्थ चार्ट लोसो ग्रिड अपना बना के और कुछ ट्रिक्स चेक करते हैं कि कैसे आएगा। बर्थ चार्ट रीडिंग का पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत सारी चीजें जब आप बेसिक पढ़ लोगे अच्छे तरीके से तो ही आता है, अदरवाइज नहीं आएगा ना। केवल मूलांक भाग्यांक जानने से कुछ नहीं होता है, चीजें और भी हैं इसमें। चलिए एक लोसो ग्रिड हम लोग यहाँ पे बनाते हैं किसी का। और जब आप बर्थ चार्ट बनाओगे तो इसको एनालिसिस कैसे करेंगे थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूंगा। आपने बर्थ चार्ट बनाया, ठीक है, 26/9/2005 हम लोगों ने बनाया था। 2 प्लेस किया था, यहाँ पे 6 आया था, यहाँ 9 आया था, यहाँ 5 हम लोगों ने यहाँ लिखा था, 2 डबल आ गया था, 2 बार आया, ठीक है। और क्या बचा था, 6 नंबर ड्राइवर आया था और कंडक्टर नंबर आया था कितना, 8 ऐड किया था, या कुछ उल्टा लिख दिया। एनीवे सपोज करो ये बर्थ है। अब क्या होता है कि बर्थ चार्ट से आप ये बता सकते हैं जितने भी नंबर आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट है, जो जो नंबर प्रेजेंट है, दे शो योर स्ट्रेंथ, वो आपकी ताकत है, ठीक है। वो आपके फॉर्चून से, वो हीरे हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ में है, वो नंबर। जो नंबर मिसिंग है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपकी वीकनेस, ठीक है। तो जो नंबर, कौन से नंबर मिसिंग है, उन नंबर का क्या इफेक्ट होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ऑन बेसिस ऑफ दैट वी कैन प्रेडिक्ट कि उस जीवन, उस पर्सन के जीवन में क्या क्या संघर्ष आ सकता है या किन चीजों से वो परेशान हो सकता है। और जो नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में है, बर्थ चार्ट में प्रेजेंट हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ बताते हैं। मींस वो आपके हिडन पोटेंशियल, दे आर द एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ योर। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जॉब में हैं कि नहीं है। अगर ये चीज आप जान गए तो आप अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते। किसी को बिजनेस करना है तो वो जॉब कर रहा है, किसी को जॉब करना चाहिए था तो वो बिजनेस कर रहा है, किसी को कंपनी में होना चाहिए तो वो टीचिंग कर रहा है, जिसको टीचिंग करना चाहिए था वो सेल्समैन बना हुआ है। तो इसीलिए लोग आपको देखते होंगे ना कि किसी जॉब में है तो परेशान है, यार अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो बिजनेस कर लेते, इससे अच्छा तो मैं नौकरी कर लेता। तो ये उन्हीं के साथ समस्या है जो अपने राइट प्रोफेशन में नहीं है। न्यूमरोलॉजी का बेस्ट एस्पेक्ट ये है कि ये आपको एक्चुअली में बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस डायरेक्शन में काम करना है, किस डायरेक्शन में काम नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको न्यूमरोलॉजी बताता है। तो बर्थ चार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं। तो आप लोग चाहो तो लिख लो ट्रिक नंबर 1। पहली ट्रिक है हमारी, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। सपोज अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में है ना, बर्थ चार्ट आप एनालिसिस करिएगा, अगर 6 और 7 नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो देखिएगा ये लोग, ऐसे लोग जिनके 6 और 7 मिसिंग है बर्थ चार्ट में, घड़ी नहीं पहनते हो, आप चेक करिएगा, रिलेट करिए। ऐसा कोई है इसमें वेबिनार में जिसका 6 और 7 मिसिंग है और घड़ी पहना, और पहनते भी होंगे ना तो मेटल की घड़ी नहीं पहनते होंगे, ये मैं 100% कहता हूं। तो 6-7 अगर मिसिंग है तो आप चेक करिएगा, ठीक। दूसरी ट्रिक बताता हूं दोस्त, तो बहुत मजेदार साइंस है, रेमेडीज की भी होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरी ट्रिक बताता हूं मैं, अगर किसी के बर्थ चार्ट में सारे नंबर हैं, ठीक है, बट अगर 7 का नंबर कई बार आ, ठीक है, एटलीस्ट थ्री टाइम या 3 से ज्यादा आ जाए, तो ऐसे लोग ना बहुत धोखे खाए होते हैं, दोस्ती में, यारी में, लव में, अफेयर में, बिजनेस में, बहुत ज्यादा टाइम से देखा। 7 का नंबर अगर कई बार रिपीट होता है, मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब होती है कभी, बट ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये इनको हम प्रॉब्लम सॉल्वर बोलते हैं। अगर किसी के 7 नंबर है तो वो बहुत अच्छा रिसर्चर बनता है जब के आगे। तो ये चीज है, ट्रिक नंबर 2 थी। मल्टीपल 7 आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को डिनोट करता है। एक और ट्रिक शेयर करता हूँ, टाइम बहुत कम बचा है। अगर किसी के बर्थ चार्ट में मल्टीपल्स 8 आ रहे हैं, है ना, रिलेट करिएगा, अगर यस है तो बताइएगा कि मैं सही हूं या नहीं, हो सकता है मैं गलत हूं, बट मैक्सिमम टाइम ये देखा गया मल्टीपल डेट से ना, ऐसे लोग देखिएगा ना मल्टीपल प्लेसेस में अपने पैसे रखते हैं, तकिया के नीचे रख देंगे, ड्रॉर में रख देंगे, अलमीरा में रख देंगे, मैक्सिमम टाइम आप देखिएगा। इनका मनी मैनेजमेंट तो होता है, बट क्या करेंगे, ये मल्टीपल प्लेसेस में अपने पैसे को रखते हैं। अच्छी चीज है, एक जगह से गायब होगा तो दूसरी जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मैं ही बोलता रह गया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आते हैं अपने, और चीजों को हम लोग करते हैं। यस मिथुन, एनीवन इन चैट, अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए, कोई Hello, डाउट है तो sir. पूछिए। यस Hello, sir. I'm यस GD Garg. जी सर। Is there effect on age? If I'm an old person or I'm a young person, I am a child, is there that effect is there? बर्थ चार्ट एनालिसिस का, यस Yeah. सर, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इट So, डजेंट मैटर कि आपकी एज क्या है, वी कैन रिकवर फ्रॉम एनी स्टेज ऑफ एज। द थिंग इज कि कुछ चीजें बर्थ चार्ट में आती है जो हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों ने राजयोग का नाम सुना होगा कि बर्थ चार्ट में yes, sir. राजयोग है, सिल्वर है, गोल्डन है, कुछ भी है। इसको ऐसे Yes. समझते हैं सर, मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है। अगर वो
एक बच्चे की है, सपोज करते हैं उसके बर्थ चार्ट में या डेट ऑफ बर्थ में बच्चे की एक 7.5 चल रही है, तो उसको क्या नुकसान हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसकी तबीयत ना सही हो, उसके पैसे पापा खर्च कर दें, या इस टाइप की कुछ चीजें उसको हो सकती, लेकिन उतना इफेक्ट उसका नहीं होगा। लेकिन अगर यही 7.5 उसके 26 साल में चल रही हो, जब वो 26 साल का हो जाए या 35 साल का हो जाए, जब उसका कैरियर का टाइम है, जब उसके अर्निंग का टाइम है, तो उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करे। कभी कभी होता है Okay. राजयोग चला गया आके, या होने वाला है चीजें, तो वो कब होंगी? जब वो 90 साल का हो जाएगा, तो रेलेवेंट नहीं रह जाता। बट आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हम अभी से जान के अपने, अगर हम थोड़ा सा ओल्ड एज हैं या एज ज्यादा हो रखी है, कैरियर से बहुत आगे आ चुके हैं, तो क्या हम सुधार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। Okay. आपके जो मिसिंग नंबर्स हैं, जो आपको करना चाहिए आपका, इसमें एक और इम्पोर्टेंट आता है, हम लोग करेंगे नेक्स्ट, अपनी टीम को जरूर बोलूंगा कि एक हॉलिस्टिक वेबिनार करें जिसमें हम नेम करेक्शन वगैरह की बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी होता है उसका ड्राइवर कंडक्टर दोनों बहुत फ्रेंडली है, बट उसका नेम स्पेलिंग उससे जेल नहीं हो रहा है, वो एंटी हो रहा है, तो नेम करेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। ये सारी चीजें करके सर, और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, ये सारी चीजें आ जाती हैं जब आप अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग चीजों को करना स्टार्ट। Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सो। एनी अदर क्वेश्चन? सर इसका एक्सटेंडेड पार्ट कब ले रहे हैं आप प्लीज? वेरी बहुत इंटरेस्टिंग जल्दी सर, सेशन। बहुत जल्दी सर, बहुत जल्दी। आप बहुत अच्छा रिस्पांस है आज का, और आप लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस चीज में। मुझे लग रहा है आपके लोगों की चैट और उन सबके देख के, मैं बहुत जल्दी टीम से कहूंगा कि एक दूसरा वेबिनार अरेंज करें जिसमें हम थोड़ा सा और डीप में चीजों को करें, सर रिस्पॉन्स जिसमें मैं आपको इसलिए ये अच्छा है बताऊंगा क्योंकि कि ड्राइवर कंडक्टर का, देखिए न्यूमरोलॉजी का जो कोर पार्ट है वो ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन। अभी आपने देखा ना 81 कॉम्बिनेशन हैं सर, 1 से लेके 9। हो सकता है किसी का मूलांक 9 हो, भाग्यांक 1, किसी का भाग्यांक 8 हो और मूलांक 2 हो, तो ये ऐसे 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। और आपको बताएंगे कि फ्रेंड नॉन फ्रेंड नंबर्स क्या है, न्यूट्रल नंबर्स क्या होते हैं। और अभी रेमेडी पार्ट तो रह ही गया है, इतने छोटे से टाइम में, आज संडे था, आपका संडे हम लोगों ने आपका 1 घंटा लिया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बट मैं करूंगा जरूर, अपनी टीम से बोलूंगा कि दूसरा वेबिनार करें, तो हम लोग इसके थोड़े से और डिटेल पार्ट में डिस्कस करेंगे। सर रिस्पॉन्स इसलिए अच्छा है क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Sir, एनी क्वेश्चन? sir, जी, could you please tell me? I'm Dr. Hemlata. I have put my date of birth, sir. Could you please डॉक्टर enter? हेमा, Yes, sir. Could या you please? कैन यू टेल अगेन वर्बली, कैन यू टेल? Yes, sir. Could you please tell me? Date of birth is 26/6/69, sir. 2669? 26/6. Just hold on, just hold on, just let me give the time to write in notepad. Sir, yes, sir. Could you please help me? 26 6 June. 6 June, 26/6/69. yes, 1969. Sir, yes, sir. Okay, Dr. Hema. Yes, please continue. Other question. I am just preparing the birth chart for that. Okay. सर प्लीज Hema, मेरा I भी will कर answer दीजिए। you. सर Yeah. प्लीज Yes. मेरा भी कर दीजिए, मैंने आपको पर्सनली भी सेंड किया है लॉन्ग बैक। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके। थैंक मैं यू। टीम से बोलूंगा कि एक व्हाट्सअप नंबर इसमें भेज दें। मैं आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। टाइम कम है, मेरी एक मीटिंग है 12:30 से, तो आई एम वेरी सॉरी। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप या टीम को व्हाट्सअप कर दीजिए, नंबर आ जाएंगे, आप, मैं आपको कह दूंगा, कांटेक्ट कर लेंगे आप, राइट? ये मेरा प्रॉमिस है, ओके। डेफिनेटली। और एल्स पर्सनली सेंड मी योर व्हाट्सएप नंबर पर्सनली ओके प्लीज। टीम, प्लीज सेंड द नंबर। आप सेव कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर और करिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ओके। डॉक्टर हेमास, Sir. yeah, I have noted. You will also contact me personally. Huh? Yes, I sir. will tell you the things. Sure, sir. Thank Sure, you. sure. Okay. And your correct name also. Name is very important. Yes, yes. Okay. Name is very important. If name spelling is the wrong number, then it will definitely give the hurdle in life. Yes, sir. Yes, sir. I didn't know that. Okay, okay. On behalf of the organization committee, I would like to sincerely thank Dayashankar Srivastava, Honor Sir, our outstanding speaker. We had the chance to hear a fascinating and thought-provoking conversation about the unlocking the basics of numerology, a beginner's guide today. Through his remarkable ability to convey information, Dayashankar Srivastava Sir left us with insightful discoveries and motivational concepts. His engaging lecture enthralled us and motivated us to study more. We appreciate the effort and time they put in organizing the educational program. From this webinar, we get to know about driver conduct and also characteristics of numbers. And also we get to know about the Losho grid, which is a 3x3 numerology chart where numbers 1 to 9 reveal traits like leadership, creativity, and relationship. By mapping our birth date onto the grid, you can discover your strengths and areas for growth.